what's up? This is Nazia and you're watching me on Enrich News. Welcome to our show Straight Talk, जहाँ होगा फन, मस्ती एंड चिट-चैट अनलिमिटेड। आज जिस इन्फ्लुएंसर से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ उसके बारे में तो कौन नहीं जानता। She is an actor, choreographer and influencer and the sensation of Nagpur. Let's have some chit-chat. Meet Nagpur sensation one and only Urvashi. Hello. Hello Urvashi, nice to meet you. So nice to meet you too. So are you comfortable here? Yes, I'm completely fine. One eternity later. So उर्वशी, आप अपनी ऑडियंस को बता सकते हो कि आपको मुझसे मिलकर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, नाज़िया से मिलके मेरा दिल खुश हो गया है। So उर्वशी, आपका इंटरव्यू लेने से पहले एक्चुअली मैंने आपको बहुत स्टॉक किया था। आई वॉज वेरी नर्वस गाइस एक्चुअल में, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लड़की खुद ही कितना बड़ा पटाखा है, तो उसका इंटरव्यू में मैं क्या ही उसका इंटरव्यू दूं। So basically 1 week पहले I started stalking you. I went through your Instagram page. मैंने वहाँ पे comment section गई, वहाँ पे comment section में इतने प्यारे प्यारे comments थे। Your audience like genuinely in love with you. I know. They are like, Urvashi, your inspiration, Urvashi this, Urvashi that. So I thought कि Instagram से उतना कुछ तो नहीं मिला. Then I went to your YouTube content. और YouTube content में जो आपका एक blog था, उसमें I went through और वहाँ पे comment section में इतने प्यारे प्यारे comment थे. So I thought कि क्यों ना इस इंटरव्यू की शुरुआत आप ही के comments, आप ही के question से की जाए. अच्छा. Done? हमको सिखा रिया है. Urvashi, what's your age? I'm 20 years old. What are you doing currently? Okay, so I'm doing my BBA. मैं 5th sem मेरा just हो गया है. I'm in 3rd year of my BBA. I'm doing content creation. I'm a dancer. I do training in dance. I also teach, like I do workshops and stuff. So yeah, that's what I'm doing. And I'm doing YouTube. So I'm kind of YouTuber. But मैं खुद को अभी YouTuber consider नहीं करती हूँ जब तक मेरा long content consistently नहीं जाता है तब तक. So in short, छोटा पैकेट बड़ा धमाका. और वैसे I heard that कि you know you are doing workshops as well. So how do you manage your time exactly? Because आपका study भी होता है. As you said that you're a student, so study, workshops, and I guess you have went through Chennai as well somewhere. Ooty. Oh, Ooty, okay. So how it's going? So I'm basically a student. मेरा 3rd year चल रहा है BBA में. And I'm in 5th sem right now. I'm doing content creation on 2 platforms currently, that is Instagram and YouTube. And I have following number तो आप लोगों को पता ही है ना. Shall I tell you? बिल्कुल बता दो, है ना. So I have like 85,000 followers on Instagram and 1,96,000 on YouTube subscribers. And I'm also doing dancing and I conduct workshops जहाँ मैं सिखाती भी हूँ. And I'm learning also. I'm doing my training from different teachers also. So मुझे एक क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि टाइम कैसे मैनेज करते हो वगैरह. मुझे लगता है कि मैं इतना भी कुछ नहीं करती हूँ गाइस, तो तुमको इतना मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ये कर रहे हो वो कर रहे हो. और जो भी मैं चीज़ें कर रही हूँ, I love those things. So टाइम मैनेज हो जाता है I guess. If you want to do something, you do. Yeah, we all know that you are very good with dancing, time management, like all the stuff. ठीक है, but genuinely, how can I say that? How are you as a student? Like एकदम backbencher, middle, topper. I have seen your vlog where you are submitting your assignment. So जब मैं स्कूल में थी तब I was topper like in 7th 8th 9th से मेरा टॉपर वाला फेज चालू हुआ. उसके पहले I was ऐसे ही, मतलब ऐसे ही चिल पढ़ती थी वगैरह. और कॉलेज में आने के बाद 11th 12th में भी I was like good student, very nice. I scored 93% in 12th. और जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ तब I started like exploring डांस में, कंटेंट क्रिएशन मेरा थोड़ा उठने लगा. तो I think मैं ओके शो. फर्स्ट ईयर में आई वाज एसिंग, लाइक आई वाज रियली गुड स्कोरर. सेकेंड ईयर में मैंने थोड़ा काम पे ज़्यादा ध्यान दिया तो परसेंटाइल मेरा थोड़ा घसर गया. बट मैं पढ़ाई ही एक रात पहले करती हूँ, लाइक मैं 10-12 घंटे पहले पढ़ना चालू करती हूँ. तो आई थिंक उसके अकॉर्डिंग आई एम गुड स्टूडेंट, लाइक मैं ठीक हूँ. ओके, सो ये जो क्वेश्चन है वो मुझे आपके यूट्यूब कमेंट बॉक्स में 2 से 3 बार दिखा. ओह ठीक है. हाउ इज योर जर्नी एज अ इन्फ्लुएंसर? ओह गॉड. ओके, सो जर्नी हैज़ बीन क्रेजी रोलर कोस्टर राइड. तो मैंने कंटेंट चालू ही ऐसे रैंडमली किया था. मेरे किसी दोस्त ने मुझे बोला था कि अरे तू तो अच्छा डांस करती, तो तू कंटेंट डालना शुरू क्यों नहीं करती. एंड उसका नाम अश्विता है, बिग
शाउट आउट टू हर। शायद वो नहीं बोलती तो मैं पता नहीं कब चालू करती, आई डोंट नो। तो तब आई स्टार्टेड पोस्टिंग माई डांस वीडियोस। मैं ऐसे ही हल्के हल्के डांस वीडियोस डालती थी और मैं उतना भी अच्छा नहीं नाचती थी, लाइटिंग में उतना कुछ समझ में नहीं आता था। मेरे पास एक पुराना फ़ोन था, उसका कैमरा भी कुछ खास नहीं था, तो मैं उसी से शूट करके डालती थी। एंड घर पे जितने भी फ़ोन्स थे, जिनके भी अच्छे अच्छे थोड़े फ़ोन्स थे, मेरे पापा ने थोड़ा नया फ़ोन लिया था, तो पापा दुकान जाने से पहले मैं शूट कर लेती थी कि 10 बजे से पहले, फिर लाइट ना जाए। ट्राईपॉड भी मैंने बहुत लेट अभी खरीदा होगा। मैं ऐसे चेयर, लोखंड की चेयर लगा देती थी, उस पर ईटे ईटे जमा के ऐसा वीडियो ऐसे शूट करती थी। सो डांस वाज माय मेन कंटेंट। फिर कॉलेज में जाने के बाद थोड़ा कॉलेज कंटेंट जाने लगा, एंड फिर घर का कंटेंट थोड़ा पेरेंट्स वाला। मेरे पापा की वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, लाइक वो दिवाली वीडियो, इट वाज लाइक अ रोलर कोस्टर। उसके बाद सब चेंज हुआ। उसके बाद मेरे डांस वीडियोस पे भी व्यूज आने लग गए, लोगों को दिखा कि अरे ये तो अच्छा डांस भी करती है, शी पुट्स होलसम कंटेंट बट ये डांस भी अच्छा करती है एंड स्टफ। तो उसके बाद से मैं जो भी डालती हूँ उस पर भी प्यार आता है, मैं कुछ भी डालती हूँ उस पर प्यार आता है। सो आई थिंक पीपल फॉलो मी फॉर माई पर्सनैलिटी, दे फॉलो मी फॉर मी। सो या अब तक की जर्नी तो वैसे ही चल रही है। सो एज ए डांसर भी आई थिंक मैंने पहले से ज़्यादा ग्रो किया है। सो आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई एम वर्किंग ऑन माई कॉन्टेंट में, और ट्राई करती हूँ कि मैं और अच्छा अच्छा कॉन्टेंट डाल सकूँ। एंड बस चल रहा है सब, एंड इट्स स्टिल अ जर्नी, लाइक चलेगा और आगे। सो फाइनली योर कॉफी इज हियर, यू कैन हैव इट आराम से, बट मेरे वो सवालों का जवाब देते देते, ओके। सो ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ मेरी साइड से, ठीक है। मैंने बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन पूछा है, लाइक जो सेलिब्रिटी है नागपुर के, मैं उनसे मिली हूँ तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा है, यार हाउ डू यू फील एज अ सेलिब्रिटी। जो लोग बोलते हैं यार मैं एम गोना हैव अ फोटो विथ यू, आई गेस यू वेंट थ्रू आई गेस स्कूल था कोई जहाँ पे बच्चे नो ऑल द स्टूडेंट्स आर आस्किंग यू फॉर एन ऑटोग्राफ, हाउ what was that feeling? बेटा मन में लड्डू फूटा। ओके, सो मुझे खुद समझ नहीं आता यार कि तुम लोग इतने क्यों क्रेजी, ऐसा क्या ही कर लिया है मैंने। नथिंग, मैं बस कर रही हूँ, मैं बस आई एम जस्ट पुटिंग माई वर्क आउट देयर एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट, एंड दैट्स क्रेजी क्रेजी। तो जब ये लोग आ रहे थे आई वाज लाइक क्यों भाई, क्यों इतना क्या तुम लोगों को। तो आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज अ सेलिब्रिटी बिकॉज आई एम नॉट, ऑनेस्टली। मैं बस एक कंटेंट क्रिएटर हूँ हु पुट्स अ कंटेंट आउट, हु पुट्स अ वर्क आउट, दैट्स इट। सो एंड आई फील गुड, लाइक अभी भी मैं जा रही थी रास्ते से तो मुझे लोग मिलते हैं, लाइक हाय हेलो, पहचान लेते हैं लोग। मैं बिना हेलमेट के कहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाती हूँ गाइस बिना हेलमेट के। तो मैं अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं बिना हेलमेट के एरिया में से जा रही थी, एक लड़की इतने जोर से चिल्लाई, मैंने गाड़ी रोकी, मैंने उसको देखा, ओह माय गॉड अब उर्वशी उर्वशी उर्वशी, इट वॉज क्रेजी। तो ऐसे मुझे काफ़ी लोग मिलते हैं, दे नो मी। ऐसे हमें नहीं समझ में आता कि सोशल मीडिया पे अगर 85,000 का या 2 लाख का नंबर दिख रहा है तो ओके ठीक है, बट ऐसे इन जनरल हमने देखा जाए तो इतने सारे बच्चे, 20 बच्चे आके आपको पूछ रहे फॉर एन ऑटोग्राफ वगैरह, तो इट फील्स क्रेजी, इट्स अमेजिंग। एक बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल फील होता है कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने छोटे छोटे बच्चे मुझे देख रहे हैं, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट कंटेंट आई पुट आउट, सो आई एम वेरी केयरफुल अबाउट इट। सो ये जो क्वेश्चन है जो मैं अभी आगे पूछने वाली हूँ, ये भी बहुत मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है आपके यूट्यूब कंटेंट पर। व्हाट्स आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट? क्योंकि आपने ऐसा बहुत कुछ है जो आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रखा है, ट्रेलर ऑफ द मूवी एंड यू आर डूइंग समथिंग इन हैदराबाद एज वेल। सो क्या चल रहा है? पीपल आर एक्साइटेड टू नो, उर्वशी प्लीज टेल अस। So I have worked with this production called Anurag Jha Creations. They make short films, web series उनके खुद के ऐप पे। So उस पे I have acted, I have done a small role in their 3rd episode. और the series जो है उसका नाम है Echoes of Eternity, और Lost in Time नाम का 3rd episode रहेगा, उसमें मेरा पार्ट है थोड़ा बहुत। इट्स अ छोटा सा रोल, 1 दिन का ही शूट था, तो आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग कि चलो यार कुछ तो नया है तो चलो करते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो आई डिड इट। वो टीजर था जो आप लोगों ने देखा है, उसका ट्रेलर भी आएगा और वो रिलीज भी होने वाला है, दिसंबर में ही होगा। सो आप लोग देखना मुझे एक्ट करते हुए कि मैं कैसे एक्टिंग कर रही हूँ। आई एम नॉट एक्सपीरियंस, लाइक मैंने एक्टिंग में कभी कुछ किया नहीं है, बट इट वॉज जस्ट फैसिनेटिंग फॉर मी, तो मैंने बोला कि चलो करते हैं यार। और जो हैदराबाद वाला आपने पूछा, वो कुछ
वो कुछ ऐसा खास नहीं था, लाइक इट्स ऑडिशन था एक जो मैंने ट्राई किया था, बट मेरा सिलेक्शन वहाँ नहीं हुआ. सो दैट्स इट. सो आई होप गाइज आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर नहीं मिले होंगे तो आप उर्वशी से इंसिस्ट कर सकते हैं कि प्लीज आप हमारे लिए एक लाइव सेशन लेकर आए. उर्वशी, whether your fans are really asking for live session, हाँ. you have to do it for your fans. ठीक है. So अभी what we will do, we will play a game. ओके. ठीक है. ये मेरा फेवरेट गेम है, मैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ खेलती हूँ. ओके. इसमें आपको सच नहीं बोलना, इसमें आपको झूठ बोलना है. ओह. ठीक है. There is a time of 60 seconds. ठीक है. उसमें मैं आपसे one by one back to back क्वेश्चन करूंगी without any break. और मुझे झूठ बोलना है. आपको झूठ बोलना है. अगर इन केस आपने अगर झूठ के जगह सच बोल दिया, so you have to do over a dare. वो भी आपके कमेंट सेक्शन में ही था, वो डेयर मैं आपको बताऊंगी. हे भगवान. सो उर्वशी, shall we start? अभी मजा आएगा ना भिड़ो. मुझे झूठ बोलना है. ओके गाइस, मैं झूठ बोलती नहीं हूँ पर मुझे झूठ बोलना है. वैसे इस सेगमेंट से चीज क्लियर हो जाएंगी कि आपकी फेवरेट उर्वशी झूठ बोलती है या सच बोलती है. सो वॉच टिल द एंड. आपके कितने बेस्ट फ्रेंड्स हैं? 2500. आप कहाँ रहते हो? जंगल में. What's your profession? आई एम अ गिटारिस्ट. What do you want to do in future? मुझे बच्चे पालने. This was so bad. No. Next workshop कब है? 11 बच्चे. You don't take time. Wait, next workshop is on 32 December. What's the one thing which you love about your audience? They're very fake. OMG guys, देखो एक stupid झूठ बोलने लगाया गया. एक गेम के लिए आपको fake लगा. आपको fake बोल दिया गया. Remember this statement. इसका opposite सच है यार. Come on. What's your favorite sports? I like DJ. This is not a sport. क्या आप अपने पेरेंट्स से प्यार करते हो? बिल्कुल नहीं. So guys, इस कुछ भी करवा रहे गाइस मेरे से ये लोग. इस गेम के एंड में आप डिसाइड करो कि जीता कौन है और हारा कौन है. लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है. सो दिस इज द सेकंड गेम. ओके. ठीक है. यू हैव टू चूज लाइक दिस और दैट. ओके. ये बेसिकली गेम मैं इसलिए खेलना चाहती हूँ ताकि आपके ऑडियंस को पता चले कि उर्वशी की फाइनली चॉइसेस क्या है. अगर कोई भी उर्वशी को डेट पर लेके जाना चाहता है, so watch this game till the end. Oh please, मैं किसी के साथ नहीं जा रही हूँ. Okay, so तर्री पोहा और चाय. साथ में दोनों. साथ में दोनों. हाँ, मतलब तरी पोहा के बाद चाय लेती. But you have to choose one now. चाय. ओ भैया धोखा. OMG. तर्री पोहा का दिल तोड़ गया होगा. धोखा, बहुत बड़ा धोखा हुआ. Okay, स्ट्रीट फूड या घर का खाना? घर का खाना. Any time. काजू कतली या बासुंदी? बासुंदी. I saw your video that you are making a बासुंदी. Is it बासुंदी or something? मैं बासुंदी बना रही थी. नहीं मतलब बासुंदी you पी just रही हूँ. put that video on your story I guess जहाँ पे you and your friends are meeting. ओके ओके. कोजागिरी वाली हमने बासुंदी बनाई थी. हाँ, we celebrated कोजागिरी. So you love बासुंदी? Yeah, I love it a lot. बहुत पसंद है मुझे. Note it. Oh please. Oh please. Okay, are you a beach person or mountain person? मैं दोनों जगह नहीं गई हूँ, बट नहीं मतलब गई हूँ बट काफी ऐसे फ्रीक्वेंटली नहीं गई हूँ. सो आई थिंक आई एम प्रिटी मच ऑफ बीच पर्सन. Beach person. Oh yes. आई गेस. आई डोंट नो. आई हैवंट एक्सप्लोर्ड इट अच्छे से, बट आई गेस. और देखते हैं. So do you like to travel or just घर पे बैठ के ब्लैंकेट में घुस के बैठना है? No, I would love traveling a lot, but there are days जब मैं blanket पे रहती हूँ. I'm both. I change personalities. अगर कोई एक चूज करना हो तो? I think I would travel and explore. Travel and explore. ऐसे एक प्लेस बताओ जहाँ पे you would like to travel. Like it can maybe your dream destination or something like this. Okay, काश ये मैंने सोच लिया होता. I think I would love to go to Paris. मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मुझे बहुत क्रेज है, मुझे बस सूझा अभी तो बोल दिया.
Okay, tell me 3 things which you will never ever want to do in your life. And on the opposite side, ऐसी 3 चीजें जो आप बहुत ही ज्यादा like you know एकदम desperate हो कि मुझे ये तो करना ही है भाई. Oh my God, very nice question. So 3 चीजें जो मैं कभी नहीं करना चाहूंगी. मैं कुछ भी मेरे being a content creator, I feel very responsible. तो मैं कुछ भी गलत टाइप के जो चीज़ें होती है उसको प्रमोट नहीं करना चाहूँगी. मैंने कभी किया भी नहीं है मेरे बीच में. जैसे बेटिंग एंड वो सब चीज़ें होती है जो आता है ना जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, गेट रिच क्विक वाले, वो मैं कभी प्रमोट नहीं करना चाहूँगी. बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं. तो मेरे को 2 करोड़ दो, मैं नहीं करूँगी. आई विल नॉट डू दैट. सेकेंड, मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे मैं खुद की नज़रों में गिर जाऊँ. और नहीं, आई वुड नेवर डू दैट. और बी फेक जस्ट बिकॉज मुझे यू नो कुछ काम मिलेगा, या फिर जो डांस फील्ड में काफ़ी चलता है कि यू नो थोड़ा अब आड़े टेढ़े काम करो तो आपको काम मिलने लगता है, जो बहुत कॉमन है डांस में. वो मुझे कभी नहीं करना है, कभी भी नहीं करूँगी मैं. मेरे को काम नहीं मिलेगा, चलेगा, मैं घर पे बैठूंगी, लेकिन मैं ऐसा कुछ कभी भी कुछ भी नहीं करूँगी. सो बिफोर आंसरिंग कि जो 3 चीज़ें मुझे करनी ही करनी है, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि मेरे सारे सपने सच होंगे. लाइक मैंने बचपन से आज तक जो भी सपना देखा है, मेरा हर सपना सच हुआ है. ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरा अधूरा सपना रहा है अब तक. सो मैं तो सारे सपने करके ही मरूंगी, सारे सपने पूरे करके ही मरूंगी. एंड जो 3 चीज़ें मैं चाहती हूँ, मैं डेस्परेटली करना चाहती हूँ, वो है फर्स्ट तो मुझे डांस में बहुत एक्सेल करना है. लाइक मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा अलग अलग स्टाइल सीखूँ, जो सीख रही हूँ उसमें भी मास्टर करूँ. I really want to do that like so badly. Second, मुझे meditation master करना है. Like I really want to get into it and वो state of mind मैं चाहती हूँ achieve करना. And third, मुझे reading में भी excel करना है. Like मैं अलग अलग type के self help books पढूँ जिससे मैं और ज़्यादा as a better individual बन पाऊँ. So I really want to do that. ओके, सो अब थोड़ा सा अगर मगर कर लेते हैं. Okay. अगर ये नहीं होता तो क्या होता? ठीक है. Okay. सो अगर उर्वशी इन्फ्लुएंसर नहीं होती, लाइक डांसर नहीं होती, एक कोरियोग्राफर नहीं होती, तो उर्वशी क्या होती? तो उर्वशी एक बिजनेस कर रही होती और उर्वशी किसी कंपनी का सीईओ होती. मेरे बचपन का ही सपना है कि मैं किसी कंपनी का सीईओ रहूं, तो शायद मैं आगे रहूंगी. आई डोंट नो, हु नोज. अगर उर्वशी को उसके बेस्ट फ्रेंड ने पुश नहीं किया होता दैट यू शुड अपलोड द कंटेंट ऑन योर इंस्टा पेज, तो आज क्या होता? आई डोंट नो, बिकॉज हो सकता है वो किसी के लिए छोटी सी बात हो, या बस बात हो, उसने भी इतना कॉन्शियसली नहीं बोला होगा कि बस बोल दिया. आई डोंट नो मैं स्टार्ट करती भी या नहीं करती, और करती भी तो कब करती. आई रियली डोंट नो. मतलब थैंक यू टू हर. मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि भाई तूने किया है, भाई तेरे वजह से शायद हुआ है. हु नोज, मैं किसी और से इंस्पायर होके भी करना स्टार्ट कर देती, बट I don't know, who knows. I know that your parents are literally rocking. Auntie, uncle, you are just amazing. ठीक है. So अगर आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट नहीं किया होता तो क्या होता? What will उर्वशी do? स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं करता है. मैंने भी उनको मनाया ही है. ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा से सपोर्टिंग थे, तो कोई भी ऐसा अज्यूम मत करो इसके पेरेंट्स सपोर्टिंग थे जिसके वजह से इसने ऐसा कुछ किया. नहीं भाई, मैंने जब मेरा पेज बनाया था ना, पापा को 2 साल तक नहीं पता था ये इंस्टाग्राम पे नाच रही है. पापा को बाद में पता चला जब आई स्टार्टेड गेटिंग पेड फॉर यू नो डूइंग प्रमोशंस वगैरह. उसके वजह से तो पापा को लगा ओ इसको वीडियोस डालने के पैसे मिल रहे हैं, तो ग्रेट. तब थोड़ा सा सपोर्ट स्टार्ट हुआ, और जब पप्पा वाली वीडियो वायरल हुई तब तो पप्पा का सपोर्ट बहुत ही बढ़ गया कि चल मैं भी वीडियो देखूंगा भाई. ऐसा वाला पप्पा का हुआ था. मम्मी हैज ऑलवेज बीन सपोर्टिंग. मम्मी भी पहले मना ही करती थी कि क्या तू क्या करे, तेरे पापा को अच्छा नहीं लगेगा तो इंस्टाग्राम में मैं तो कर रही हूँ भाई, मेरे को नहीं पता. तो मैंने हमेशा अपने मन की है. सो आज स्टार्टिंग से बिंदास गर्ल कि भाई मेरे को जो करना है वो तो मैं करूंगी. इट्स लाइक कि मेरे को दुखी नहीं रहना. मेरे पेरेंट्स की छोड़ो, हाँ मेरे दोनों पेरेंट्स की काफी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं बड़े होके. मेरे को नहीं बनना था. मेरे को 6वीं से डिसाइड कर लिया था मैंने, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी तो नहीं बनूंगी. मेरे को तो काफी टेंशन था, मैं उनको कन्विंस कैसे करूंगी कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना. मेरे को बहुत 10वीं तक टेंशन था. फिर 11वीं 12वीं में जब फाइनली चूज करना पड़ता है कि बायो लो फिर डॉक्टर बनो, तब काफी बड़ा सा कलेश काइंड ऑफ हुआ था. मेरे पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो वो मेरे को 5वीं 6वीं से बोल रहे थे कि तू तो डॉक्टर बनेगी, हमारे खानदान के पहले डॉक्टर बनेंगे. ऐसा मुझे नहीं बनना था. तब से मुझे बहुत टेंशन थी कि यार मैं इनको मनाऊंगी कि इसमें मुझे तो डॉक्टर बनना ही नहीं है. तो फिर 10वीं में जब
10वीं हो जाती है तो चूज करना पड़ता है ना, ये करना है वो करना है। तो मैंने ऐसे सोचा था कि मैं इंजीनियर बनूंगी, फिर मैं MBA करूंगी, फिर मेरे को 1 करोड़ का पैकेज लगेगा और ऐसा मैंने सोचा था कि ये मेरा प्लान था। बट मेरे पेरेंट्स को लग रहा था कि ये तो डॉक्टर बनेगी। तो एक कोचिंग क्लासेस थी जो उनका डेमो क्लास चल रहा था, वो जो रहता है ना JEE नीट वाले क्लासेस, बायो, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब पढ़ाते हैं। तो मैं इंजीनियरिंग वाला पढ़ रही थी, मतलब मैं मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ रही थी। मेरे पेरेंट्स को लग रहा था ये बायो पढ़ रही है उनको लग रहा था मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ, मैं तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। फिर एक दिन पापा और मेरा डिस्कशन हुआ कि हाँ तेरा नीट का ऐसा है। मैंने बोला पापा नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बन रही हूँ। पापा ने बोला नहीं तो डॉक्टर बन रही है। फिर मैंने उनका दिल रखने के लिए 1 महीना पढ़ाई की। वो क्लास चलती रहती थी, मेरे आंखों से आंसू गिरते थे मैंने सोच लिया भाई अपने बस का नहीं है, मेरे को नहीं करना। मैंने पापा को बोला पापा मुझे नहीं करना। फिर थोड़ा कलेश होने के बाद, रोना ढोना, बहुत रोना ढोना करने के बाद पापा मान गए तुझे जो करना है कर। सो ऐसे स्टार्ट हुआ। ऐसे तो मैंने ये कन्विंस किया कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना। फिर मैंने सोचा कि मेरे को इंजीनियरिंग में नहीं करनी, मैं BBA करके कंटेंट में घुसूंगी, ऐसा कुछ ऐसा था। सो बेसिकली उर्वशी, आज आपके सारे के सारे राज खुल चुके हैं, ठीक है। इसके लिए आपको आपके पेरेंट्स से जूते जूते चप्पल भी बहुत बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। आई डोंट थिंक सो। अच्छा, ये क्वेश्चन ना बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को पूछा जाता है, ठीक है, कि एक इन्फ्लुएंसर को किसी भी एड को प्रमोट करने का या फिर किसी से भी कोलैब करने का कितना पैसा मिलता है, पैसा मिलता है बेसिकली। सो इट इज नॉट फिक्स्ड, वो काफी वैरी करता है और तुम्हारी लोकेशन भी आई गेस उसको अफेक्ट करती है। मतलब मैं नागपुर में हूँ, मुझे यहाँ कोई एक्स अमाउंट मिल रहा है कोई प्रमोशन करने का, तो वही अगर मैं शायद किसी बड़े सिटी लाइक मुंबई में होती तो शायद मुझे 3x तक मिल सकता था, ऐसा मुझे लगता है। सो ऐसे तो इनकम रिवील नहीं करनी चाहिए बट मैं एवरेज बता देती हूँ। लाइक एवरेज मुझे अब तक रील का एवरेज पकड़ लो समवेयर लाइक अराउंड 8 to 10K के पास पकड़ लो आप एवरेज। मतलब एक इंसान का रहने खाने का खर्चा आराम से निकल जाता है। नहीं बट इट्स एवरेज, लाइक ऐसा नहीं है कि इतना ही मिलेगा इतना, ऐसा काइंड ऑफ। और वो भी डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ का प्रमोशन कर रहे हो। आप किसी लोकल शॉप का, नागपुर के तो ऑडियंस जो नागपुर के वो अलग चलता है, अगर किसी ब्रांड का आ रहा है तो वो अलग चलता है, सब अलग अलग होता है। और यूट्यूब शॉर्ट्स पे आई थिंक अभी मुझे जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, बट मेरे को श्योरली मिलेगा। बट मैं एवरेज बता दूं तो 20K पकड़ लो यूट्यूब शॉर्ट्स। पैसा ही पैसा होगा। सो बेसिकली 4 और पैसा ही पैसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम तो डूइंग इट वेरी लेस में अभी, बट अभी मैं नहीं करूंगी। अगर ये देख के कोई ब्रांड आई मेरे पास, अरे हमारा भी कर दो मतलब आई एम ऑन माई वे। तो मैं बस खुद को प्रूव करने के लिए कि मैं एड वाला कंटेंट भी अच्छा कर सकती हूँ, वैसा उसको मैं एज एन अपॉर्चुनिटी लेती हूँ और फिर मैं प्रमोशंस करती हूँ। Okay, so basically people are desperate to know about your personal life. ठीक है, they are आई एम सीइंग जो आने वाला है ना, मेरे को दिख गया है क्या आ रहा है। they are just amazing and they are asking this question again and again. ठीक है, एक तरफ तो आपके फैमिली हो गई, हाँ, एक तरफ आपके हो गए प्यारे प्यारे दोस्त जिनके साथ आप नई नई चीज एक्सप्लोर करते हो, एक साइड हो गया आपका वर्क हो गया, प्रोफेशन हो गया। सो ट्रायंगल 3 है ना उर्वशी। अच्छा, 14 एंगल मुझे दिख गया है, मुझे दिख गया है क्या पूछने वाले, मुझे दिख गया है। कोई समवन स्पेशल भी हो सकता है, कोई ऐसा स्पेशल पर्सन हो सकता है जो उर्वशी के उप्स एंड डाउन्स में भी उसके साथ हो, या फिर ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है जिसको उर्वशी डेट कर रही हो। अच्छा, हाउ टू इम्प्रेस उर्वशी? अगर किसी को नहीं मत, मैं होने नहीं उर्वशी को इम्प्रेस करना है तो क्या होगा? 2 चीजें जो आगे वाला इंसान करे। मत करो आई एम वेरी हैप्पी, मत करो। Okay, so this is the last question I want to ask you. People are asking मतलब on your comment section कि एक साइड तो आपका हो गया कि that you are working as a कोरियोग्राफर एज वेल, ठीक है। सो आगे वाली कौन सी ऐसी वर्कशॉप्स है जो ऑडियंस एक्सपेक्ट कर सकती है आपसे? वर्कशॉप्स तो मैंने बॉलीवुड वर्कशॉप्स ही लिए अब तक तो, और अभी रिसेंटली मैंने सेमी क्लासिकल ली, सो उसको भी काफ़ी क्रेजी रिस्पॉन्स आया था। सो आई गेस मैं ये दोनों स्टाइल्स को और आगे लेके जाऊंगी, और बॉलीवुड तो रहेगा ही रहेगा, फिर सेमी क्लासिकल भी आएगा आगे, और आई डोंट नो बट बॉलीवुड तो रहेगा फॉर श्योर।
ओके सो ये जो अफवाह है ये उड़ते उड़ते मुझ तक आई है। इनफैक्ट काफी कौन लोगों तक अफवाह ये उड़ा रहा है मेरे बारे में? कि उर्वशी के कुछ फ्रेंड्स है, हाँ, ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो उर्वशी को बहुत अनॉय करते हैं। अनॉय करते हैं? नहीं, अनॉय कौन करता है मुझे? मेरे फ्रेंड्स अनॉय एज इन अ गुड वे, लाइक मस्ती वाला अनॉय इज फाइन, बट ऐसे इरिटेटिंग तो नहीं है। मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं और अगर वो मुझे नहीं पट रहे तो मैं उनके साथ फ्रेंड्स क्यों रहूंगी? मेरा बहुत छोटा सर्कल है। बट सो उर्वशी बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन कि लाइक भाई आता है तो आने दे, जाता है तो तू अपना रास्ता पकड़ ले। एग्जैक्टली मेरे को अगर कोई नहीं पट रहा है तो मैं तो कट ऑफ कर देता हूँ। वेरी वेरी गुड इनटू इट, लाइक बहुत अच्छी हूँ मैं। मेरे को तुम नहीं पट रहे हो, आई विल कट यू ऑफ एंड तुमको पता भी नहीं चलेगा। You very chalak, bro. वेरी नाइस इन दैट। Okay, the last message which you want to give to your audience. I just want to thank you all with my whole heart, क्योंकि मैं Me as well यार। हाँ, थैंक हर ऑल्सो कि वो आई, इतना सुंदर उसने क्वेश्चन डिजाइन किया, इतना सा प्लान करके आया, इतना सुंदर सेटअप, सो ब्यूटीफुल नादिया, ग्रेट वर्क। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने मुझे बुलाया, मैं आई एंड इट्स क्रेजी। मैं बस दूसरों के इंटरव्यू ऐसे यूट्यूब पे देखती थी और आज मेरा खुद का लिया जा रहा है, तो इट्स क्रेजी और इतने जल्दी, इट्स क्रेजी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और फॉर ऑडियंस थैंक यू ही बोलूंगी यार, और क्या ही बोल सकती हो तुम। लाइक एक नॉर्मल सी लड़की को तुमने इतना उठा दिया है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह मेरे कंटेंट को इतना प्यार कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं मैं बहुत कुछ अलग कर रही हूँ, आई एम जस्ट डूइंग समथिंग दैट आई लव, बस। तो उसके लिए मुझे लोग प्यार कर रहे हैं। आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल, थैंक यू। उसकी वजह से मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, ये इंटरव्यू हो गया उसकी वजह से। आई एम जस्ट ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो मैं यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाती, बट आपके सपोर्ट के साथ मैं यहाँ से भी कई गुना ऊपर जा सकती हूँ। सो जस्ट बी विथ मी, स्टे विथ मी, स्टिक बाय मी एंड थैंक यू सो मच। सो गाइज ये थी आपकी प्यारी उर्वशी। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको उर्वशी का इंटरव्यू, उर्वशी की अदर साइड, उर्वशी की पर्सनालिटी कैसी लगी, एंड ऑल्सो लेट मी नो कि नेक्स्ट इंटरव्यू आप किसका देखना चाहते हो। दैट्स इट फॉर टुडे। देखते रहिए एमरिश न्यूज़।